Now exercise 1.4. Question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. Question number 1. 13 by 3125. हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसके लिए रेशनल नंबर्स को टू पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is equal to 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are whole numbers। एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल which is in the form of p by q but denominator q is not equal to in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। Firstly 13 by 3125 हम लोग इसके डिनोमिनेटर 3125 इसको फैक्टराइज करेंगे। 3125 को फैक्टराइज करेंगे। 5 से इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 5 6 जा 30 और 1 12 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 5 5 जा। Therefore 13 by 1325 may be written as 13 by 5 into 5 into 5 into 5. That's equal to 13 by 5 to the power 4. It may be written as 13 by 2 to the power 0 into 5 to the power 4 because 2 to the power 0 is equal to 1. Therefore 13 by 3125 may be written as 13 by 2 to the power 0 into 5 to the power 4. Here denominator q is in the form of p by q where q if q is equal to 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore this may be written as terminating decimal expansion. Thus terminating decimal expansion. That's all. Question number 2, 17 by 8. It is in the form of p by q. Q where q is 8. You have to factorize 8. 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2. This may be written as 2 into 2 into 2 means 17 by 2 to the power 3. That's equal to 17 by 2 to the power 3 into 5 to the power 0 where 5 to the power 0 is equal to 1. Therefore this is in the form of 2 to the power 3 into 5 to the power 0. This is in the form of terminating decimal. Q is equal to 2 to the power n into 5 to the power m. You can say it. This is terminating decimal expansion. क्वेश्चन नंबर 3, 64 बाई 455। हम लोग 455 का फैक्टराइज करेंगे। 5 से 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 64 बाई
455 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5, 7 एंड 13। इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore, this may be written as in this form, that is non-terminating repeating decimal. Non-terminating repeating decimal. Non-terminating repeating decimal. 15/1600 और हम लोग 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उससे बेटर होगा हम लोग इसको कैंसिल कराते हैं 5 से। 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 और 1 5 2 जा 10 और 5 0 0। अब छोटा रूप हो गया इसका, दैट इज इक्वल टू 3/320। अब 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 2160, 2 से 80, 2 40, 2 से 20 हो गया, 2 से 10 और 2 × 5। Therefore, this is 3/1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 5 to the power 1। या इसका डिनोमिनेटर q 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है। q p बाई q के फॉर्म में हुआ 3/2 to the power 6 into 5 to the power 1, 2 to the power 6 into 5 to the power 1, या q is equal to 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है। Therefore, this is terminating decimal. Terminating decimal expansion. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 29/343। डिनोमिनेटर 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया। 7 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63, that is 7 × 7। This is equal to 29/7 × 7 × 7, 29/7 to the power 3। This is the form of p by q, where q is not equal to 2 to the power n into 5 to the power m. Hence, you can say that this is non-terminating repeating decimal। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2। या p by q के फॉर्म में है और इसका q ऑलरेडी 2 to the power 3 और इंटू 5 to the power 2 है। इट मीन्स यह 2 to the power 3 और इंटू 5 to the power 2 के फॉर्म में है। मीन्स इसका फॉर्म हो गया 2 to the power n इंटू 5 to the power n, वेयर n is equal to 3 and m is equal to 2। Therefore, this is terminating decimal या terminating decimal के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसका ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और इसका डिनोमिनेटर q है 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। इट मीन्स यह इस फॉर्म में नहीं है। q का फॉर्म होना चाहिए 2 to the power n into 5 to the power m होना चाहिए, और दिस इज नॉट इक्वल टू 2 to the power 2
into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. Due to this 7 to the power 5, 7 to the power 5 के कारण यह इस फॉर्म में नहीं है. Therefore, this is non-terminating repeating decimal. That's on. क्वेश्चन नंबर 6/15. इसको हम लोग कैंसिल कराएंगे 3 से. 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15. That's equal to 2/5. It may be written as 2/5 to the power 1 into 2 to the power 0, where 2 to the power 0 is equal to 1. यह इस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, और q is equal to है, q is equal to 5 to the power 1 into 2 to the power 0 है, जो 2 to the power n और into 5 to the power m के फॉर्म में है, where m is equal to 1 and n is equal to 0. Therefore, this is terminating decimal. That's नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9, 35/40. हम लोग इसको कैंसिल कराते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं. 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40. दैट इज इक्वल टू 7/8. और इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4. So 7/2 into 2 into 2. This is equal to 7/2 to the power 3. And it is in the form of 7/2 to the power 3 into 5 to the power 0, where 5 to the power 0 is equal to 1. इसका डिनोमिनेटर p/q के फॉर्म में है या, और q is equal to 2 to the power 3 into 5 to the power 0, जो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है, where n is equal to 3 and n is equal to 0. This is terminating decimal. नेक्स्ट क्वेश्चन है 77/210. इसको हम लोग 7 से कैंसिल करा रहे हैं. 7 11 7 जा 77 एंड 7 3 जा 21 एंड 0. यह हो गया 11/30. अब इस 11/30 में डिनोमिनेटर 30 है. इस 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 15 हुआ एंड 3 से 5. यह हुआ 11/2 into 3 into 5. p/q के फॉर्म में है, बट q is equal to 2 into 3 into 5. q is not equal to 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore, this is non-terminating repeating decimal. Question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. In question number 1, just we have found that the following questions have terminating decimal expansion. Those are question number 1, question number 2, 4, 6, 8 and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 questions have terminating decimal expansion out of 10. 6 have terminating decimal expansion. और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन. इन 6 क्वेश्चंस का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को लिखना है. 6 क्वेश्चन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का 13/3125. 13/3125
3125 13 by 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए। तो 5 से 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो गया 125, 5 से फिर डिवाइड किया 25 एंड 5 से हो गया 5, दैट्स इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट्स इक्वल टू 13 बाई 5 टू द पावर 1 2 3 4 5 5। इसे हम लोग 2 टू द पावर 5 से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है। 2 टू द पावर 5 से डिनोमिनेटर को और फिर इसी से 2 टू द पावर 5 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों चूँकि सेम है, ये दोनों कैंसिल भी हो सकता है, और इसको अगर आगे डेवलप करते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है यह 13 इंटू 2 टू द पावर 5 and this is equal to 5 to the 5 into 2 to the power 5, that's equal to 13 into 2 to the power 5. 2 to the power 5 means 2 to the power 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 by 5 into 2 to the power the whole 5. 5 to the power 5 और into 2 to the power 5 है। इंडिसेस में हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर n और इंटू b टू द पावर n होता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं a इंटू बी टू द पावर n। इंडिसेस में है, इसी ग्राउंड पर, इसी बेस पर, दोनों का बेस 5 और 2 है, तो 5 इंटू 2 लिखा गया और इसका होल पावर 5 5 जो दोनों में है, यह 5 यहाँ लिख दिया गया। इक्वल टू हो गया 13 इंटू 2 टू जा 4 2 जा 8 2 4 2 8 2 16 32 एंड बाई 10 टू द पावर 5। अब इसको 13 को 32 से मल्टीप्लाई किया गया, 13 दूना 26 2 13 40 416 बाई 10 टू द पावर 5 1 2 3 4 5 0, दैट्स इक्वल टू 416। अब यहाँ 1 के बाद देखो 1 2 3 4 5 0 है, तो यहाँ भी राइट हैंड से 5 डिजिट के पहले डिसिमल डालना होगा। इसमें 3 डिजिट्स हम लोग के पास है, 1 2 3 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 0 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ डिसिमल डालेंगे और इसके पहले 0 लिखेंगे। यही इसका हो गया डिसिमल एक्सपेंशन 13 बाई 3125 का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्वेश्चन है 17 बाई 8 जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है दूसरे नंबर पर, इसका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो हम लोग ऐसे तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, 17 में 8 से डिवाइड कर सकते हैं ना, या फिर इसको एक्सपेंशन करके भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक्सपेंशन करके करना होगा यह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 17 बाई 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3। और इसको हम लोग अब डिनोमिनेटर को 5 टू द पावर 3 से एंड न्यूमरेटर को भी 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह हो जाएगा 17 इंटू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25 5 जा 125 एंड बाई 2 इंटू 5 टू द पावर। अब 17 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिलता है 2125 और बाई यह हो जाता है 10 टू द पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2125 बाई 1। अब इसका डिस्काउंट बैठा देना 2.125। और वैसे अगर डायरेक्ट हम लोग 8 से ऐसे बनाएं या फिर हम लोग 8 से 17 में डिवाइड करें, तो यह डिवाइड करने के बाद भी हमें यही सेम चीज़ प्राप्त होगा। इस ग्राउंड पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है
15 by 1600, 15 by 1600, इसको कैंसिल कराते हैं हम लोग 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 1 2 5 2 जा 10, 0, यह हो रहा है 3 by 320। और इस 320 को अगर फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 320 को 2 से फैक्टराइज करते हैं तो 160, फिर 2 से करते हैं तो 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 1 2 3 4 5 6 और इंटू 5 हमें मिलता है 2 to the power 6 और इंटू 5। अब यहाँ पर 2 to the power 6 है और यहाँ 5 to the power 1 है, तो इसको भी 6 लाने के लिए हम लोग 5 to the power अगर 5 कर देते हैं डिनोमिनेटर को, या 5 to the power 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को भी हम लोग 5 to the power 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह हो जाएगा 3 into 5 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 into 5 to the power इसका 1 और इसका पावर 5, यह हो जा रहा है 3 into, अब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3125, और यह हो जाएगा 2 to the power 6 और इंटू 5 to the power 6, दैट्स इक्वल टू, अब 3 को 3125 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलेगा 9375 डिवाइडेड बाय 5 to the 10 to the power 6, दैट्स इक्वल टू 9375 और बाई 2 4 6 0, और हम लोग डिसिमल बैठाएंगे तो 9375, और 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 है, और ऊपर में 9375 4 डिजिट है, हमें 6 डिजिट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट बैठाकर 0 कर देंगे, ये इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, 23 by 2 to the power 3 into 5 to the power 2, ऑलरेडी इसको फैक्टराइज किया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 और इंटू 5 to the power 2, और यहाँ 2 to the power 3 है और यहाँ 5 to the power 2 है, तो अगर इसको हम लोग डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 या इसका पावर 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, जो 2 का भी पावर है, इसलिए इसको भी 5 to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह प्राप्त हो जाएगा 23 into 5 by 2 to the power 3 into 5 to the power 2 plus 1, that's equal to 5 3 जा 15 carry 1, और 5 2 जा 10 और 1 11, 115 by 2 into 5 to the power 3, 115 by 10 to the power 3, that's equal to 115 by 30, अब डिसिमल बैठाना है तो 0.115। क्वेश्चन नंबर 8, टर्मिनेटिंग डिसिमल था 6 by 15, इसको हम लोग कैंसिल कराते हैं 3 से, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, यह हुआ 2 by 5, 5 है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, दैट्स इक्वल टू 0.4, तो इसका डिसिमल कॉल हो गया। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 35 into 270 और 15 into 2 हो जाएगा 100, और डिसिमल बैठाएंगे तो 0.70, इसमें भी रिटर्न है 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q?
फर्स्ट क्वेश्चन है 43 पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन 43.123456789। अब इसे हम लोग इसके डिसिमल को हटाना है फर्स्ट, है ना, तब बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो डिसिमल हटाने के लिए हम लोग पहले पूरे डिजिट को लिख देते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये डिसिमल के बदले में लिख दिया गया 1, डिसिमल के लिए 1, और 1 के बाद अब नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग को काउंट करना है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 0 हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको नेक्स्ट हम लोग डेवलप कराते हैं तो